Hello my dear friends, I am Professor Vayam Khan and this is part 3 of our unit number 3 heat treatment of steels of subject materials and metallurgy. In today's video we are going to continue with the heat treatment process, and today we will be studying the normalizing process and what is the difference between annealing and normalizing process. In previous video we have studied various types of annealing process like full annealing, isothermal annealing, cyclic annealing, your process annealing, diffusion annealing, and etc. Okay, so today we'll cover normalizing part, and before proceeding to that I'll request you to subscribe to my channel, like this video and share this video. Let us begin. So normalizing, the word comes from normal, okay, and the sole purpose of this process is similar to that of annealing process. In annealing process the main purpose was to soften the material, to make steels more softer, more ductile, more malleable, okay, and that same purpose is also for normalizing. But here the difference is that in normalizing process we use a faster cooling rate as compared with the annealing process. In annealing process we use furnace cooling, or we cool the specimen in the furnace, and here the specimen is cooled in the air, so that the cooling rate is little bit faster. Okay, this is the first difference. Second difference is the heating temperature. The heating temperature range for hypereutectoid steel is ACM, that is temperature where cementite formation starts, and above this temperature cementite is present. So this ACM plus 50 degrees Celsius is the temperature range for hypereutectoid steel, whereas for the annealing process it is A1 plus 50 degree Celsius. Okay, so let us start with the normalizing process. So the process consists of three main stages. First stage is heating, second stage is cooling, and second stage is holding, and third stage is cooling in the air. Okay, now generally the specimens are heated above the austenitic temperature, that is 727 degrees Celsius. So we heat it above 727 degrees Celsius, and above 727 degrees Celsius it is heated up to 727 plus 30 to 50 degrees Celsius. Okay, now for a hypoeutectoid steel, the temperature range is A3 plus 50 degrees Celsius. So you can see this orange strip. This represents the temperature range. This bottom line represents 30 degrees Celsius plus 30 degrees Celsius. This upper line represents plus 50 degrees Celsius. So A3 plus up to 50 degrees Celsius you heat the hypoeutectoid steel. For hypereutectoid steel the temperature range is different here. It is above the ACM temperature. So this is your ACM temperature, and above this ACM temperature up to 50 degrees Celsius of ACM we heat the specimen for a hypereutectoid steel. Now this heating is uniform heating, and it should be maintained, the heating should be maintained uniform, so that whole component gets heated properly. Okay, so this is heating. This is the temperature range of normalizing. For annealing it is like this. So for annealing the temperature range is like this. Okay, so here is the annealing temperature range. Okay, so let us go ahead. Let us see what is the holding and soaking period for this normalizing process. After heating the specific steel or specific component above the austenitic temperature, it is held at this temperature for a time period which is equals to 1 hour for each
25 mm थिकनेस स्पेसिमन और डायमीटर। हर एक स्पेसिमन का अगर थिकनेस, एक स्पेसिमन का थिकनेस अगर 25 mm है तो हम क्या करेंगे, 1 घंटा उस टेम्परेचर रेंज पर उस स्पेसिमन को होल्ड करेंगे ताकि जो स्पेसिमन है इसमें यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए, यूनिफॉर्म ऑस्टेनाइट फॉर्म हो जाए। ओके, अगर आपका 50 mm थिकनेस का स्पेसिमन है तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, इट विल बी 2 आवर्स। अगर आपका 100 mm थिकनेस का स्पेसिमन है तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड इट विल बी 4 आवर्स। ओके, सो थिकनेस और डायमीटर अगर 25 mm तक है तो 1 घंटा होल्ड करना है। जितना बड़ा स्पेसिमन उतना ज़्यादा होल्डिंग पीरियड, ताकि उतना अच्छा आपका यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बिफोर कूलिंग आपको मिल सके। देखो, जितना यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर आपको बिफोर कूलिंग मिलेगा उतना ही ज़्यादा अमाउंट में वो स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारे परलाइट में कन्वर्ट होगा। हमारे पास में परलाइट बनाने के लिए हमको ऑस्टेनाइट चाहिए रहता है, करेक्ट है। सो ऑस्टेनाइट से, इस गामा ऑस्टेनाइट से क्या होता है, गामा ऑस्टेनाइट से हमारा परलाइट फॉर्म होता है। ओके, सो जितना हमारा गामा ऑस्टेनाइट रहेगा उतना ज़्यादा परलाइट फॉर्मेशन होगा। ओके, सो हमारा जो भी स्पेसिमन रहेगा उसमें हम ट्राई करते हैं कि सभी की सभी ऑस्टेनाइट रहे, सभी की सभी जगह पर ऑस्टेनाइट हमको देखने मिले, ताकि जितना ज़्यादा ऑस्टेनाइट बनेगा उतना ज़्यादा परलाइट फॉर्म होगा। ओके, इन केस अगर यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं है, समझो इस रीजन में कम ऑस्टेनाइट प्रेजेंट है, इसकी जगह पर दूसरे जो स्ट्रक्चर है वो अगर प्रेजेंट है तो आपका इतने रीजन में ऑस्टेनाइट दिखेगा और इतने रीजन में आपको ऑस्टेनाइट कम नजर आएगा। सो वैसा ही स्ट्रक्चर हमारे कूलिंग के बाद में फॉर्म होगा, तो इतने ही रीजन में हमको परलाइट दिखेगा और इतने रीजन में जो इम्प्योरिटीज है वो हमको नजर आएगी। ओके, सो देयरफॉर यूनिफॉर्म हीटिंग एंड यूनिफॉर्म कूलिंग होना बहुत जरूरी है। थर्ड स्टेज इज कूलिंग। सो दिस इज very important because in this normalizing process the specimen is cooled in air। हम क्या करते हैं, फर्नेस में से हमारा स्पेसिमन बाहर निकालते हैं होल्डिंग पीरियड के बाद में और उसको एयर में रख देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उसका एयर के वजह से कूलिंग होता है, विच इज लिटिल बिट फास्टर कूलिंग रेट एज कंपेयर्ड विद द एनिलिंग। वो एनिलिंग से कंपैरिजन में फास्टर है, बट सिंस दिस इज फास्टर कूलिंग रेट द कूलिंग इज नॉट यूनिफॉर्म। ये जो कूलिंग रहती है ये यूनिफॉर्म नहीं रहती है। ओके, कई जगह पर अगर आपका ऐसा रेक्टेंगुलर अगर स्पेसिमन है, सो एयर गोज लाइक दिस। ओके, एयर गोज लाइक दिस। सो ये जो रीजन है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर कई बार आपको कूलिंग नहीं देखने मिलती प्रॉपर। ओके, यहाँ पर ज्यादा देखने मिलती। सो लाइक दिस हैपन्स विद नॉर्मलाइजिंग कूलिंग। नॉर्मलाइजिंग की एयर कूलिंग की वजह से ऐसा होता है। एंड हेंस जो भी ऑस्टेनाइट है, जो भी गामा ऑस्टेनाइट है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मीडियम परलाइट। उसका कन्वर्जन होता है मीडियम परलाइट में। ओके, नाउ दिस मीडियम परलाइट इज लिटिल बिट हार्ड एज कंपेयर्ड विद द कोर्स परलाइट। देखो, मैंने 3 परलाइट बताए आपको, एक है कोर्स परलाइट, एक है मीडियम परलाइट और एक है हमारा फाइन परलाइट। ओके, सो इसमें जो कोर्स परलाइट है इट इज सॉफ्टेस्ट, सबसे सॉफ्ट है। ओके, दिस इज द सॉफ्टेस्ट वन, दिस इज मीडियम सॉफ्ट। ओके, ये थोड़ा सा मीडियम है एंड दिस इज सॉफ्ट। ओके, सो सॉफ्ट, सॉफ्टर एंड सॉफ्टेस्ट अगर मैं बोलूँ, सो दिस इज सॉफ्ट, फाइन परलाइट इज सॉफ्ट, मीडियम परलाइट इज सॉफ्टर एंड कोर्स परलाइट इज सॉफ्टेस्ट। ओके, सो ये थोड़ा सा मीडियम हार्ड वाला हमको परलाइट यहाँ पर देखने मिलता है। मीडियम सॉफ्ट, मीडियम हार्ड, इस तरीके से ये यहाँ पर परलाइट हमको देखने मिलता है। ओके, सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ नॉर्मलाइजिंग। हीटिंग करो यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म होल्डिंग करो, ओके, एंड देन एयर कूलिंग, जिसकी वजह से हमको मिलेगा मीडियम परलाइट। सो हार्डनेस ऑफ दीज स्टील्स और हार्डनेस ऑफ नॉर्मलाइज्ड स्टील्स एज कंपेयर्ड विथ द एनाइल्ड स्टील इज मोर। हार्डनेस ज्यादा रहती है इसकी। ओके, बट अगेन इट इज ऑल्सो काउंटेड एज ए सॉफ्ट। बट सॉफ्ट में ही अगर हम कंपैरिजन करें तो इससे भी और सॉफ्ट हमारे पास में एनिल्ड स्टील रहेगा। एनिल्ड मतलब जिसके ऊपर एनिलिंग किया है। ओके, सो लेट अस नाउ डिस्कस द नॉर्मलाइजिंग इन ट्रिपल टी डायग्राम। नॉर्मलाइजिंग को ट्रिपल टी डायग्राम में देखते हैं। देखो, नॉर्मलाइजिंग से पहले जो एनिलिंग की हमने ट्रिपल टी डायग्राम देखी तो उसमें ये जो
CCT कर्व है, जो कंटिन्यूस कूलिंग कर्व है, विच इज डार्कर ग्रीन, और ये जो लाइटर ग्रीन IT कर्व है, तो ये दोनों भी यहाँ पर इंटरसेक्ट होते थे। ओके, मतलब उनका स्टार्ट पॉइंट सेम था। बट इन दिस प्रोसेस, इन दिस नॉर्मलाइजिंग, ये एक एक्स्ट्रा कर्व आपको दिखना मिल रहा है येलो कलर का, ऑरेंज कलर का। दिस इज नथिंग बट योर CCT एंड ट्रिपल T डायग्राम कंबाइंड। सो ये हमारा ट्रिपल T, ये CCT। ओके, सो ये हम दोनों भी जो कर्व्स हैं, IT कर्व और CCT कर्व, ये दोनों भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, एंड इन दिस नॉर्मलाइजिंग, सो आपका CCT कर्व और IT कर्व बोथ ऑफ देम इंटरसेक्ट एट द परलाइट फिनिश। ओके, परलाइट फिनिश पे वो इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, एंड ये जो ऊपर वाला रीजन है, सो योर अपर रीजन इज नथिंग बट योर कोर्स परलाइट, बीच वाला जो रीजन है इट इज नथिंग बट योर मीडियम परलाइट। ओके, और सबसे नीचे वाला जो रीजन है इट इज नथिंग बट योर फाइन परलाइट। तो अलग अलग रीजन है हमारे जो CCT कर्व और ट्रिपल T कर्व के जो अलग अलग पोर्शंस हैं, इन पोर्शंस में हमको क्या है कि अलग अलग परलाइट देखने मिलता है। इन अपर रीजन यू फाइंड इट कोर्स, इन मीडियम region you find it medium perlite, and at the bottom you find it like this is the region where you find coarse perlite, this is the region where you find medium perlite, and this is the region where you find fine perlite. Okay, this is the region where you find upper benite, and this is the region where you find lower benite. And these are the portions where you find martensite and martensite finish. So you can see that both of these curves intersect here. That means the transformation is completed. इस point पर transformation complete हो गया है, perlite finish हो गया है बनना, और इस region में कौन सा perlite है? Medium perlite है, इसलिए हमको end में क्या मिलता है? Medium perlite मिलता है। Okay, so this is about your normalizing in triple T diagram. Let us go ahead. So what is the changes in their microstructure? Microstructure में क्या चेंज आता है? See, this is austenite which is above 727 डिग्री सेल्सियस। ये 727 के ऊपर का austenite है। Since this will be air cooled, इसको हम air cool करेंगे। Okay, so air cooled जब करेंगे तो हमारा normalizing होगा, और normalizing की वजह से जो microstructure form होता है it is nothing but medium lamellar perlite। अब ये जो perlite है it is little bit हार्डर, ये थोड़ा सा हार्ड है एज कंपेयर्ड विद दी एनिल्ड परलाइट या कोर्स परलाइट के कंपैरिजन में हार्ड है। सो इसकी जो स्ट्रिप्स है दे आर लेस स्मूदर, ये कम स्मूथ रहती है एज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस वन। सो यू सी दिस स्ट्रिप्स, दीज आर मीडियम लैमिलर परलाइट। ओके, सो दिस व्हाइट पोर्शन इज नथिंग बट योर फेराइट, दिस ब्लैक पोर्शन इज नथिंग बट सीमेंटाइट। ओके, नाउ लेट अस कंपेयर द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ एनिल्ड स्टील and microstructure of normalized steel. So this is annealed steel जिसके ऊपर annealing किया है, जिसके ऊपर annealing process हो चुकी है, slow cooling हो चुका है, और ये normalized है जिसके ऊपर normalizing process हो चुकी है, जिसके अंदर जो भी हमारा perlite है वो ferrite और cementite का ही मिक्सचर है दोनों भी जगह पर। तो अगर आप देखोगे तो annealed में ये जो strips है these are more smoother because ये जो cementite की strips है ये थोड़ी soft हो जाती है as इन annealing प्रोसेस। जो फेराइट है वो ज़्यादा अमाउंट में आपको दिख रहा है, हियर द अमाउंट ऑफ फेराइट इज लिटिल बिट लेसर एंड सीमेंटाइट इज मोर, एंड दे आर लेस स्मूदर एज कंपेयर्ड विद द एनिल्ड स्टील। सो कोर्स लैमिलर परलाइट कुछ इस तरीके से दिखता है, और मीडियम लैमिलर परलाइट कुछ इस तरीके से। दोनों भी सेम नज़र आ रहे हैं, बट ये जो स्ट्रिप्स है ये थोड़ी ज़्यादा स्मूथ है, ये कम स्मूथ है। दीज आर इन लार्ज नंबर, दीज आर इन लेस नंबर। Okay, so this is the basic difference between the microstructure of a annealed steel and a normalized steel. Okay, so let us go ahead, let us see what is the purpose of doing the normalizing process. The main purpose is to increase the machinability बढ़ाना, specifically for medium to low carbon steel. Okay, उनकी machinability बढ़ाना। Then again to relieve the internal stresses remove करने के लिए। Okay, then to modify and refine cast dendritic structures,
जो कास्टिंग्स है उसमें अगर डेंड्राइट्स है, अगर इस तरीके से मैं इंगॉट बताऊँ और इसमें अगर मैं डेंड्राइट्स देखता हूँ, सो दीज डेंड्राइट्स दे नीड टू बी रिमूव्ड। सो इनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, देन टू मॉडिफाई द ग्रेन साइज, जो भी आपके ग्रेन्स रहेंगे, अगर इस तरीके से मैं क्रॉस सेक्शन रखूँ तो ये जो भी ग्रेन्स रहेंगे इसके अंदर, इन ग्रेन्स को क्या करना है, हमको यूनिफॉर्म करना है। ओके, इस तरीके से वो यूनिफॉर्म दिखने चाहिए मुझे एंड रिफाइंड दिखने चाहिए। ओके, स्मूथ होने चाहिए, इसलिए ये प्रोसेस करनी है। एंड बट ऑब्वियसली स्टील्स पे अगर, इन्हीं स्टील्स पे अगर आगे भी और कुछ हीट ट्रीटमेंट करना है तो वो हीट ट्रीटमेंट के लिए इन स्टील्स को सूटेबल बनाना, ये नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का काम है। सूटेबल बनाना मतलब कैसा कि देखो ये जो स्टील है, स्टील में क्या मिलने वाला है मुझे, एंड प्रोडक्ट जो भी रहेगा वो परलाइट रहेगा। ओके, अगर मुझे इस पर सब्सिक्वेंट हीट ट्रीटमेंट करना है, जैसे कि मुझे ये जो भी स्टील है इसके कोर में, मतलब सेंटर में, बॉडी में मुझे सॉफ्ट मटेरियल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सॉफ्टर रखूँगा और इसके आजू बाजू वाले पोर्शन में मुझे अगर हार्ड चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर केस हार्डनिंग या सरफेस हार्डनिंग करूँगा। ओके, सो केस या सरफेस हार्डनिंग करूँगा। अब केस और सरफेस हार्डनिंग के लिए अंदर का कोर जो है वो सॉफ्ट चाहिए और बाहर का जो सरफेस है वो हार्ड चाहिए। तो ऐसी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने के लिए मुझे कोर में ऑलरेडी परलाइट अगर अवेलेबल होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कम हीटिंग में, कम टाइम में मैं क्या कर सकता हूँ, सरफेस को हार्ड बना सकता हूँ। अगर यहाँ पर परलाइट नहीं होगा तो मुझे पहले तो उसको परलाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन मुझे सरफेस हार्डनिंग करनी पड़ेगी। सो सबसिक्वेंट हीट ट्रीटमेंट क्या हो जाएगी, मेरे लिए आसान हो जाएगी अगर वो पहले से ही नॉर्मलाइज्ड स्टील अगर है तो। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मेकिंग स्टील सुटेबल फॉर फर्दर हीट ट्रीटमेंट। एडवांटेजेस क्या है एज कंपेयर्ड विद द एनीलिंग प्रोसेस, इट इज फास्टर बिकॉज कूलिंग इज डन इन द एयर मीडियम में कूलिंग की जाती है। अगेन इट रिक्वायर्स लेस फर्नेस टाइम, फर्नेस का टाइम कम हो जाता है क्योंकि एनीलिंग में जो फर्नेस टाइम है वो ज़्यादा है, क्योंकि आप कूलिंग खुद एनीलिंग का कूलिंग जो है वो फर्नेस में ही करते हैं। उसके बजाय आप क्या करेंगे, नॉर्मलाइजिंग में क्या करेंगे कि जो फर्नेस है उसमें से आप स्पेसिमन निकाल दोगे बाहर और उसको क्या करोगे, कूल करना शुरू कर दोगे। ओके, एयर में वही टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, दूसरा स्पेसिमन जो है वो फर्नेस में रख सकते हैं और उसका हीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो यू कैन डू साइमल्टेनियस हीटिंग इन द फर्नेस while the another component is being cooled. So this reduces the timing, so that's why it is a faster and less time consuming process as compared with the annealing process. Okay, applications, it is used to modify properties of cast metal. So cast metal है उनकी प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए, to make uniform grains in forging, rolled and extruded parts, जो कोल्ड वर्क प्रोडक्ट्स है जैसे फोर्ज्ड हुए हैं, रोल्ड हुए हैं, एक्सट्रूडेड हैं, इनके ग्रेन्स को यूनिफॉर्म बनाने के लिए भी क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग का यूज करते हैं। देन अगेन टू इंक्रीज मशीनेबिलिटी ऑफ लो टू हाई कार्बन स्टील, लो से हाई कार्बन स्टील के जो भी स्टील्स है इनकी मशीनेबिलिटी बढ़ाने के लिए। देखो जितना जो लो कार्बन स्टील है इट इज लेस मशीनेबल, वो कम मशीन होता है। ओके, सो इनकी हमको मशीनेबिलिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। So it can be improved by using your normalizing process. So this is application. So this was all about normalizing process. Let us now compare or let us now differentiate between annealing process and normalizing process. So this may be asked for 4 to 5 marks in examination. So annealing का पहले देखेंगे. So annealing gives less hardness. It is gives less hardness, less tensile strength and toughness भी कम रहती है एनील्ड का। नॉर्मलाइजिंग में ज़्यादा हार्डनेस मिलती है एज कम्पेयर्ड विथ एनीलिंग, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा मिलती है और टफनेस भी ज़्यादा मिलती है। इसमें कूलिंग मीडियम जो है वो है फर्नेस के, क्योंकि हम कूलिंग फर्नेस में ही करते हैं बाय स्विचिंग ऑफ द फर्नेस। इसमें कूलिंग मीडियम जो है वो है एयर, क्योंकि हम फर्नेस के बाहर कूल करते हैं। इसमें जो एंड प्रोडक्ट हमको मिलता है, एंड माइक्रो स्ट्रक्चर मिलता है, इट इज़ कोर्स परलाइट बिकॉज ऑस्टेनाइट गेट्स कन्वर्टेड टू कोर्स परलाइट, और इसमें जो हमको एंड प्रोडक्ट मिलता है इट इज मीडियम परलाइट बिकॉज ऑस्टेनाइट गेट्स कन्वर्टेड टू मीडियम पियरलाइट।
The grain size distribution in this annealing process is more uniform. ग्रेन बहुत यूनिफॉर्म रहते हैं, बहुत इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, उनके साइजेस भी बहुत इक्वल नज़र आती है. वेयर एज द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट दैट मच यूनिफॉर्म इन नॉर्मलाइजिंग. ओके, इसमें थोड़ा सा कम यूनिफॉर्म हमको देखने मिलता है. द टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज मोर हियर एंड द टोटल टाइम रिक्वायर्ड हियर इज less. So this was all about normalizing and annealing process. In next video we'll study about hardening process and various types of hardening, and till then please stay safe, stay at home and keep learning. Thank you.